कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे गॉस लॉ को। गॉस लॉ इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार इसे रिव्यू करेंगे। गॉस लॉ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा था हमने लास्ट में गॉस लॉ का। सबसे पहले हमने ये देखा था गॉस लॉ होता क्या है। इसमें हमने ये देखा था कि इट गिव्स अ रिलेशनशिप। This theorem or this law gives a relationship between the total flux passing through any closed surface and the net charge enclosed within the surface. This theorem gives a relationship. ये जो theorem है, ये relationship देता है दो चीजों में, और वो दो चीजें क्या क्या है? Relationship between the total electric flux passing through closed surface. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड नेट चार्ज इनफ्लो, यानी फ्लक्स और नेट चार्ज के बीच का रिलेशनशिप देता है गॉस लॉ। फिर हमने देखा था गॉस लॉ की डेफिनेशन। इसमें हमने देखा कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। और फॉर्मूला देखा था हमने पाई ई टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डॉट ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। और इस थ्योरम को हमने डिराइव भी कर लिया था। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गॉस लॉ। इसमें हमने देखा था कि गॉस, पहला पॉइंट देखा था, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर दोज इलेक्ट्रिक फील्ड्स व्हिच फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है जहां पे कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। गॉस लॉ किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉसिबल है, जबकि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉसिबल है। तीसरा हमने देखा था the total charge contained inside the closed surface means algebraic sum। the total charge contained inside the closed surface का मतलब the algebraic sum of all the charges, the algebraic sum of all the charges situated inside the surface। फोर्थ पॉइंट में हमने ये देखा था कि electric flux passing through a closed surface doesn't depend on the shape of the surface। Total electric flux passing through closed surface doesn't depend on the shape of the surface। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से पास करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड नहीं करता, तो शेप ऑफ द सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था electric flux passing through a closed surface doesn't depend on charge distribution inside the surface। inside the surface में charge distribution किस तरह से है उस पे भी electric flux डिपेंड नहीं करता। ये हमने 5 पॉइंट्स कल देखे थे। आज हम देखेंगे 6 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 6 ये है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स on value of charge। net electric flux, net electric flux depends on the value of the charge। जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा
चार्ज की वैल्यू पे and also nature of the medium. The net electric flux depends on the value of the charge and nature of the medium. And nature of the medium, यानी किस मीडियम में उस चार्ज को प्लेस किया गया है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और उस चार्ज की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा. So net electric flux depends on the value of the charge and also the nature of the medium in which the charge is placed. Then 7 point है, if charge q is located at center of closed symmetric body, if charge q is located at the center of closed symmetric body, if charge q is located at the center of closed symmetric body, at the center of closed symmetric body, if the charge q is located at the center of closed symmetric body, then electric flux associated with its half surface, then electric flux associated with its half surface, if charge q is located at the center of closed symmetric body, then electric flux associated with its half surface, closed symmetric body, जैसे सपोज करो क्यूब है या क्यूबॉइड है, and electric flux is situated at the center of the closed symmetric body. इसके इस पूरे क्यूब या क्यूबॉइड के सेंटर पे अगर कोई चार्ज सिचुएटेड है, if the charge q is situated, if the charge q is located at the center of closed symmetric body, then electric flux associated with its half surface, ये इसके हाफ सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट करेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 फाई, एंड 1/2 फाई की वैल्यू होती है गॉस लॉ से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. So electric flux associated with the half surface is q by 2 epsilon naught. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 8. Point number 8. If symmetric body has n identical faces, if symmetric body has n identical faces, सिमेट्रिक बॉडी हैज n आइडेंटिकल फेसेस, कोई भी सिमेट्रिक बॉडी जैसे क्यूब जो है
वो सिमेट्रिक बॉडी है, क्योंकि क्यूब के अंदर 6 सिमेट्रिकल फेसेस होते हैं, आइडेंटिकल फेसेस, n identical faces, and charge q is located at its center, and charge q is located at its center. n आइडेंटिकल फेस है और चार्ज q जो है उसके सेंटर पे लोकेटेड है. Then electric flux associated with each of its faces. Then electric flux associated with each of its face. Each of its face. अगर कोई सिमेट्रिक बॉडी है जिसमें n आइडेंटिकल फेसेस है, जैसे अपन क्यूब की बात कर ले, क्यूब एक सिमेट्रिक बॉडी है जिसमें एक ही तरह के 6 फेसेस होते हैं, एंड चार्ज q इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर, और चार्ज q उस क्यूब के सेंटर पे लोकेटेड है, तो ईच फेस से होकर के कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेसेस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा phi upon n. ईच फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो ईच फेस से फ्लक्स पास करेगा phi upon n, और phi की वैल्यू डाल देंगे तो 1 upon n एज इट इज, phi की वैल्यू हो गई q by epsilon naught. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through each of the faces of q. ईच फेस से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगी, 1 upon n into phi by n is q by epsilon naught n, q by epsilon naught n. ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो न्यूमेरिकल्स को यूज करते हुए काम आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है. अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम. कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ को प्रूव करेंगे. कूलम्स लॉ from Gauss theorem. गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ को प्रूव करेंगे. तो एक स्फीयर लेते हैं, स्फीयर का सेंटर O, यहाँ पे Q चार्ज है और ये रेडियस ऑफ द स्फीयर, यहाँ पे प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर ds की भी डायरेक्शन बाहर की तरफ. गॉस लॉ से, और यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इस स्मॉल एलिमेंट की एरिया ds है, इस स्मॉल एलिमेंट की एरिया कितनी है, ds है, और टोटल सरफेस की एरिया s है. तो हमने गॉस लॉ को पढ़ा है कि phi e total flux through a closed surface equals to closed surface integration E dot ds. From Gauss law, total flux phi E equals to E dot ds, और E dot ds को हम लिख सकते हैं E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे E और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री है. E ds cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, तो सरफेस इंटीग्रेशन E into ds, ये हमने गॉस लॉ से पढ़ा है. अब यहाँ पे phi E इक्वल्स टू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि चार्ज फिक्स है और ये डिस्टेंस फिक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब फाई की वैल्यू गॉस लॉ से फाई की वैल्यू होती है q बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ से हमने पढ़ा कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड E as it is और इंटीग्रेशन ऑफ ds। ये स्मॉल एरिया है, ये स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहां से एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देंगे, सो q इक्वल्स टू E into 4 pi epsilon naught r square and E equals to 1 by 4 pi epsilon naught and q by r square। E equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square। ये हमें आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स F इक्वल्स टू होता है q नॉट into E, तो F इक्वल्स टू E की वैल्यू डाल देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर। तो ये रिजल्ट कौन सा रिजल्ट है? ये कूलम्ब्स लॉ है। तो हमने गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को प्रूव किया। एक बार और देख लीजिए कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को लिख दिया। गॉस थ्योरम होता है टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। ये वेक्टर का साइन यहां लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट। अब इसे A डॉट d को खोल देंगे, AB cos थीटा। तो E डॉट ds को ओपन करेंगे तो E ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू 0 है क्योंकि E और ds के बीच एंगल 0 डिग्री है। cos 0 1 होती है, तो E डॉट ds हो गया। E कांस्टेंट है, E को बाहर ले लेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कहीं पे भी अगर हम एलिमेंट्री एरिया लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, तो सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस यहां से क्या होगी? r होगी, और चार्ज q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लिया, चेंज क्या होगा? एरिया की वैल्यू चेंज होगी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ds। स्मॉल एरिया का इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से E की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और फोर्स का फॉर्मूला होता है Q नॉट इनटू E। E की वैल्यू डाली, फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड U2 and infinitely long straight charge wire। इलेक्ट्रिक फील्ड U2 infinitely electric field due to infinitely long straight charge wire। infinitely long straight charged wire। इसका डेरिवेशन हमने पीछे भी किया था, पहले भी किया था, लेकिन पहले हमने इंटीग्रेशन के मेथड से इसका डेरिवेशन किया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, लेकिन हमने इसे इंटीग्रेशन मेथड से डिराइव किया था। यहाँ पे हम गॉस लॉ से इसे डिराइव करेंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, ये डेरिवेशन हम इंटीग्रेशन मेथड से कर चुके हैं प्रीवियसली। अब हम इसे गॉस लॉ से प्रूव करेंगे। तो डायग्राम देखिए, देयर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर एनी चार्ज प्लस क्यू। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे तीन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो कंसीडर a thin infinitely long straight wire, thin infinitely long straight charged wire with uniform linear charge density. Consider a thin infinitely long straight charged wire with uniform linear charge density. Linear charge density lambda. हमने कंसीडर किया लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब हमें कोई पॉइंट R है, यहां से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इस R डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा। तो गॉसियन सरफेस के रूप में हम क्या लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं। ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं जो इस वायर को कंप्लीटली एनक्लोज कर दे। तो हम एज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे एक सिलेंडर, इसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। लॉन्ग वायर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और उस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिलिंड्रिकल सरफेस जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं एज्यूम कर लेंगे इस वायर के चारों तरफ। तो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance R from the charge. We have to find electric field at point P at a distance R from the wire, at a distance R from the wire। हमें P पॉइंट पे जो कि R डिस्टेंस पे, वायर से R डिस्टेंस पे है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। फॉर दिस वी चूज ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। फॉर दिस वी चूज अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जो कि हमने ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है। We choose a cylindrical Gaussian surface of radius R and length L। इस Gaussian surface की लेंथ है L।
और रेडियस आर है। ये डिस्टेंस अगर आर है तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी आर होगा। ये रेडियस हो गया, आर सिलेंडर का रेडियस हो गया। सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एन। एल लेंथ का और आर रेडियस का हमने एक सिलेंडर एज्यूम किया। अब हमारे पास 3 सरफेसेस हैं। एक तो ये कर्व सरफेस है और 2 सर्कुलर सरफेस है। इस कर्व सरफेस के ऊपर हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस कर्व सरफेस के ऊपर हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया। तो इस कर्व सरफेस के ऊपर जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। और सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर हमें पता है सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो ds वेक्टर। यानी इस कर्व सरफेस के ऊपर E और ds दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में होंगे। जो E की डायरेक्शन होगी वही ds की डायरेक्शन होगी। जैसे ये अगर सिलेंडर है तो यहाँ पे कोई चार्ज है इसके सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ और सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो E और ds। फिर 2 सर्कुलर सरफेस है, एक तो ऊपर में सर्कुलर सरफेस है सिलेंडर का और एक नीचे का सर्कुलर सरफेस है। यहाँ पे भी हमने एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम कर ली और इसे नेम दे दिया S1, इसे नेम दे देते हैं S2। अब ये जो सर्कुलर फेस है इसके ऊपर भी, इस सर्कुलर फेस के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ। लेकिन यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे ये सिलेंडर है तो ये नीचे का सर्कुलर फेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन यही होगी, लेकिन एरिया वेक्टर अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहां से ds की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बात करते हैं टॉप वाली जो सर्कुलर सरफेस है, यहाँ पे भी हमने एक एलिमेंट्री सरफेस एज्यूम कर लिया और इस सरफेस का नाम दे दिया S3। अब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ और एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ds। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ E और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री। अब हम गॉस थ्योरम को यूज करेंगे। तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि टोटल फ्लक्स phi E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट ds, E डॉट ds, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। अब हमारे पास कितने सरफेस हमने एज्यूम किए? हमने 3 सरफेस एज्यूम किए, एक तो S1 और एक S2 सरफेस और एक S3 सरफेस। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन S1 E डॉट ds, E डॉट ds प्लस S1 सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए। अब बात करते हैं S2 सरफेस के लिए, वो लाइन इंटीग्रेशन S2 E डॉट ds प्लस अब टॉप वाली सरफेस S3 के लिए इंटीग्रेशन S3 E डॉट ds। अब इसे हम फॉर्मूले में खोल देंगे। कौन सा फॉर्मूला? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, A डॉट B इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। इस फॉर्मूले पे खोल देते हैं। तो इंटीग्रेशन S1 E ds cos थीटा। अब इस सरफेस के लिए E और ds के बीच का एंगल थीटा कितना है? 0 डिग्री है, प्लस इंटीग्रेशन S2 E ds cos S2 सरफेस के लिए E और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री, प्लस ये S3 सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए E ds cos 90 डिग्री। अब हमें पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स phi E इक्वल्स टू, यहां से cos 0 1 होगा, इंटीग्रेशन S1
E इंटू ds। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 0, cos 90 0 होती है, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। अब यहां से फ्लक्स फाई, गॉस थ्योरम से फ्लक्स फाई किसके इक्वल होता है, q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू डाल दी, फाई की वैल्यू होती है q बाय एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, इसको बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ds। अब हमें ds का इंटीग्रेशन करना है, तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा, यानी टोटल सिलेंडर की लेंथ, और सिलेंडर की जो लेंथ होती है वो होती है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो फाई यहां से q बाय एप्सिलॉन नॉट e एज इट इज, और ds का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। ये होता है लेंथ ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एल। इसकी लेंथ कितनी है, 2 एल है, और सरकमफेरेंस कितनी है, 2 पाई आर। तो E इंटू 2 पाई आर एल। अब इस Q की वैल्यू देखते हैं, Q की वैल्यू क्या होगी। तो हमने यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी ली थी लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहां से Q की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू ए। Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए, Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए। ये है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल। तो यहां से Q की वैल्यू डाल देते हैं, Q की वैल्यू लैम्डा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई आर एल। Q की वैल्यू डाल दी लैम्डा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इंटू लैम्डा इंटू एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इक्वल्स टू Q बाय एल, Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देंगे, तो E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आ गया डेरिवेशन, E equals to lambda upon 2 pi epsilon naught r. This is the electric field intensity due to a long straight charge wire at a distance r from the charge. इसको एक बार और देख लेते हैं। एक्सप्रेशंस देख रहे थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर कंसीडर किया, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर कंसीडर किया, और जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब फॉर्मूला हम जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इक्वल्स टू Q बाय L। यहां से Q की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली लैम्डा इनटू L। अब हमें करना क्या है, ये जो लीनियर लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे रखा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो इस वायर के चारों तरफ हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया, और वो गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जो इस वायर को कंप्लीटली पूरी तरह से कंटेन कर ले। तो ऐसा गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही पॉसिबल है, क्योंकि सिलेंडर के बीच में ये कंटेन हो जाएगा, ये वायर सिलेंडर के बीच में कंटेन हो जाएगा पूरी तरह से। तो हमने एक गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, और उस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की लेंथ L है और रेडियस R है। अब हमारे पास तीन सरफेस है, एक तो ऊपर का टॉप सरफेस जो कि सर्कुलर है, नीचे का बॉटम सरफेस वो भी सर्कुलर है, और एक कर्व सरफेस है। तो तीनों पॉइंट में हमने तीनों सरफेस के एलिमेंट्री एरिया ले ली, एक एलिमेंट ले लिया,
S1, यहाँ पे एलिमेंट ले लिया S2, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया S3। अब तीनों जगह हमने E और ds की डायरेक्शन देख ली। प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी और एरिया वेक्टर जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इस सरफेस के लिए यानी कर्व सरफेस के लिए E और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ। अब बात करते हैं सर्कुलर फेस के लिए। सर्कुलर फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, लेकिन एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए नीचे की तरफ हो गया, यानी इनके बीच का एंगल थीटा 90 हुआ। टॉप वाले फेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, एरिया वेक्टर अपवर्ड, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अब हमने गॉस थ्योरम को लगा दिया। टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू E डॉट ds इंटीग्रेशन, और E डॉट ds हमने तीन सरफेस लिए थे, तो तीनों के लिए हमने अलग-अलग इंटीग्रेशन ले लिए। S1 EDS, S2 EDS, S3 EDS। फिर हमने A डॉट B डॉट प्रोडक्ट को खोल दिया, जो थीटा की वैल्यू थी वो डाल दिया, ये दोनों वैल्यू 0 हो गई क्योंकि cos 90 0 होती है। हमारे पास बच गया E into ds। अब E तो फिक्स है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया और ds का इंटीग्रेशन कर दिया। अब ds सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई rl। तो ds की जगह पे हमने लिख दी 2 पाई rl, q की जगह पे लैम्डा इनटू l, l से l कैंसिल, इसको सॉल्व करके आ गया e इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged infinite non-conducting sheet। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field due to a uniformly charged electric field due to a uniformly charged infinite non-conducting sheet एक प्लेन शीट है जो कि इनफाइनाइट लेंथ की है और ये नॉन कंडक्टिंग है। दो डेरिवेशन देखेंगे, एक तो नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए देखेंगे और एक कंडक्टिंग शीट के लिए देखेंगे इसके बाद। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। तो एक नॉन कंडक्टिंग शीट को एज्यूम करते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसका एक पार्ट हम एज्यूम कर लेंगे। लॉन्ग कंडक्टिंग शीट का हमने एक पार्ट एज्यूम कर लिया। ये शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस q चार्ज सिचुएटेड है। और अब ये शीट है, तो शीट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। शीट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। सिग्मा होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां से q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इनटू a। इसकी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। ये शीट है, तो ये प्लेन शीट इस तरह से है, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट।
इस तरह का प्लेन शीट है और ये चार्ज इसके ऊपर सिचुएटेड है। तो अब हमें यहां से इस शीट से r डिस्टेंस पे, शीट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहां भी हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। यहां पे भी हम एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। और एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम कर लिया। जो r डिस्टेंस यहां से r डिस्टेंस है, उसी तरह से इस साइड भी r डिस्टेंस पे ये कंप्लीट सिलेंडर हो गया। ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक r, ये डिस्टेंस भी r। हमने एक सिलेंडर सपोज कर लिया जो कि इस शीट को कंटेन कर रहा है बोथ साइड से, और ये नॉन कंडक्टिंग शीट है। नॉन कंडक्टिंग शीट के इनसाइड भी चार्ज होंगे, पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर कंडक्टिंग होता तो कंडक्टिंग में इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि चार्ज केवल सरफेस पे रिजाइड करता है। ये नॉन कंडक्टिंग है, पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दोनों तरफ r डिस्टेंस पे एक कंप्लीट सिलेंडर हमने एज्यूम कर लिया और इसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है और सिग्मा इक्वल्स टू q बाय a। q की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहां भी हम तीन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। एक सरफेस तो हमने यहां पे एज्यूम कर लिया, इसे S1 नेम दे दी। एक सरफेस यहां एज्यूम करते हैं, इसे H2 सरफेस नेम दे दिया। दोनों जो सर्कुलर फेस है, सिलेंडर का जो सर्कुलर फेस है, उन दोनों पे हमने दो सरफेस ले लिए और एक सरफेस हम ले लेते हैं इसके कर्व सरफेस पे, और कर्व सरफेस पे S3 सरफेस इसे नेम दे दिया। अब देखिए प्लस Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के कारण S1 सरफेस जो हमने एलिमेंट लिया है, स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और सरफेस एरिया ये भी बाहर की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन। इस सर्कुलर फेस पे भी ये E की डायरेक्शन और ये DS की डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और सरफेस एरिया DS। अब फिर हम गॉस थ्योरम को यूज करते हैं। तो गॉस थ्योरम से टोटल फ्लक्स फाई E डॉट ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसे हम ओपन करते हैं, तो इंटीग्रेशन S1 सरफेस के लिए E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन फॉर H2 सरफेस, ये H2 सरफेस इसके लिए E डॉट ds और प्लस S3 सरफेस के लिए ये H2 ये S3 E डॉट ds इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसे डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर देते हैं। a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा, a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा। तो इसे लिख देते हैं इंटीग्रेशन S1 E ds cos। अब S1 सरफेस के लिए E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 डिग्री।
प्लस इंटीग्रेशन S2 E ds cos 0 डिग्री, यहाँ भी एंगल 0 डिग्री प्लस, और इसकी एरिया, स्ट्रीट की एरिया हमने सपोज कर ली A है, स्ट्रीट की एरिया A है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया है सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A, चार्ज अपॉन एरिया, स्ट्रीट की एरिया A है। यहां से इंटीग्रेशन S3 E ds cos 90 डिग्री, E ds cos 90 डिग्री इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, E और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री है, cos 0 1 होता है, और इंटीग्रेशन S1 E ds प्लस इंटीग्रेशन S2 E ds और ये 0 इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे, तो E इंटीग्रेशन S1 ds प्लस इंटीग्रेशन S2 E बाहर ds इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ds क्या है? स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया मतलब A, टोटल एरिया हमने क्या लिया है? A लिया है, यहां से भी ds का इंटीग्रेशन टोटल एरिया A इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, EA प्लस EA, ये बन गया 2EA इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू डाल देते हैं, तो 2EA, Q की वैल्यू डालिए वहां से, Q इक्वल्स टू सिग्मा इनटू A, Q इक्वल्स टू सिग्मा इनटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से A से A कैंसिल और E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। This is the expression for electric field due to a uniformly charged infinite non-conducting sheet. फिर से देख लीजिए, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसे सपोज कीजिए नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो इस शीट को कंटेन करे, इसके लिए हमने एक सरफेस एज्यूम कर लिया, गॉसियन सरफेस, इससे होकर के एक सिलेंडर को पास करा दिया। हमें यहां से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हमने एक सिलेंडर पास कराया, तो इस सिलेंडर इस सरफेस को कंटेन कर रहा है, इस सरफेस की एरिया A है, तो और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A। यहां से Q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमने तीन सरफेस एज्यूम कर लिए, दो सर्कुलर फेस पे और एक कर्व सरफेस पे, और गॉस लॉ को हमने लगा दिया। यहाँ पे E और ds के बीच 0 डिग्री, यहाँ पे E और ds के बीच एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। इसको सॉल्व करके ds का इंटीग्रेशन टोटल एरिया जो कि हमने A लिया है, यहाँ पे EA प्लस EA इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, 2EA इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू डाल दी सिग्मा इनटू A, A से कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग शीट, ये नॉन कंडक्टिंग शीट था, अब कंडक्टिंग शीट के लिए देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शीट। Electric field due to a charge conducting sheet.
ये हमने कंडक्टिंग सीट की। अब कंडक्टिंग सीट में इनसाइड कंडक्टिंग सीट कंडक्टर सपोज कर लो, तो इनसाइड चार्ज की वैल्यू 0 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि कंडक्टिंग सीट में चार्ज जो होते हैं केवल आउटर सरफेस के ऊपर रिजाइड करते हैं, इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता। तो सरफेस के ऊपर, सीट के सरफेस के ऊपर, जैसे ये है कंडक्टिंग सीट, तो चार्जेज रिजाइड करेंगे, कॉर्नर पे रिजाइड करेंगे, एजेस पे चार्ज रिजाइड करेंगे। अंदर चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि कंडक्टिंग सीट के इनसाइड देयर इज कोई चार्ज नहीं रहता। चार्ज कहां पे आ जाते हैं? चार्ज जो है वो कॉर्नर पे आ जाते हैं, चार्ज कंडक्टिंग सीट के अंदर। तो कंडक्टिंग सीट के कॉर्नर्स पे चार्ज आ गए। अब इस सीट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहां भी हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे। ये गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम कर लिया। अब यहां पे भी तीन सरफेस है हमारे पास। एक तो स्मॉल एलिमेंट यहां ले लेते हैं S1, यहां पे स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं S2, और ये सरफेस ले लेते हैं S3। अब यहां पे देख लेते हैं डायरेक्शन। सो S1 सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और ds की डायरेक्शन, दोनों के एंगल 0 डिग्री। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और ds इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। और यहाँ पे ये इनसाइड है, ये इस सरफेस के ऊपर है, ये जो सर्कुलर पोर्शन हम देख रहे हैं ये सरफेस के ऊपर है। तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, E की वैल्यू ही यहाँ पे 0 है। E की वैल्यू क्या है? इसके ऊपर 0 है। अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और ds की डायरेक्शन, लेकिन E की वैल्यू 0 होने के कारण यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लिए 0 होगी। अब यहाँ पे भी गॉस लॉ को हम यूज करते हैं, तो सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तीन सरफेस हमने एज्यूम किया है, इसे ओपन कर देते हैं। So for surface S1, E dot ds, for surface S2, E dot ds, and for surface S3, E dot ds equals to q by epsilon। और इस सरफेस की, इसकी सरफेस एरिया A है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा इक्वल्स टू q बाय a, और q की वैल्यू आएगी सिग्मा इनटू a, q इक्वल्स टू सिग्मा इनटू a। तो इसे ओपन करते हैं, इंटीग्रेशन E ds cos 0 डिग्री S1 के लिए, सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, प्लस S2 के लिए भी इसे भी ओपन करते हैं, S1 S2 E ds cos 0 डिग्री, और यहाँ पे S2 सरफेस के लिए और ये S3 सरफेस के लिए E ds cos 90 डिग्री इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 1, तो S1 सरफेस के लिए E को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन S1 ds, और यहाँ पे चूंकि E की वैल्यू 0 है, S2 सरफेस के E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के कारण यहाँ पे पूरी 0 हो जाएगी। ये E 0 होने के कारण ये पूरा टर्म 0 हो गया, और यहाँ cos 90 0 होता है, इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ds की प्लेस पे टोटल एरिया हमने ले लिया है, इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E into A इक्वल्स टू q की वैल्यू डाल देंगे, q इक्वल्स टू सिग्मा into A, सिग्मा into A।
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल और E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग शीट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द शीट। शीट से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर अ चार्ज कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। आज की क्लास हो गई और नाइट में मैं कल तो पूछ नहीं पाया था क्योंकि वो सीबीएसई का 12th का पेपर का न्यूज आ गया था। आज मैं फोन करके आप लोगों से पूछूंगा, आज वाला भी टॉपिक को इंक्लूड करूंगा। इसकी आप तैयारी ढंग से कर लेना। कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई हो तो इंडिविजुअली आप मुझसे जुड़ करके क्लियर कर सकते हैं।